Dear students, this is Professor Kavita Kamerikar from Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal. In this lecture, we'll discuss about the next type of ADC, successive approximation type ADC or A to D converter. In the previous lecture, we have discussed two types of ADC, ramp type and dual slope integrating type. This is a lecture plan 36 of the subject EMI. So let's start with the topic successive approximation type ADC. It is the most widely used and popular ADC method. In this method, the conversion time is maintained constant and is proportional to the number of bits in the digital output, unlike the counter type A to D converters. The basic principle of this A to D converter is that the unknown analog input voltage is approximated against n-bit digital value by trying one bit at a time, beginning with the MSB. सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? यहाँ पर हम जिस भी वोल्टेज को हमें कन्वर्ट करना है डिजिटल में, उसको हम वन बाय वन वैल्यू से अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे एंड एट ईच टाइम वी विल ट्राइंग वन बिट एंड दिस विल बी स्टार्ट विद द MSB बिट. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ADC. Now the block diagram of successive approximation type of ADC. Here we can see from the diagram there is an analog input voltage that we want to convert into digital. There is a comparator to compare the analog input with the another voltage. There is a successive approximation register or called as SAR. It is used for the approximation method. It is activated by the clock pulse and the output of the register will be the output of converter, and the output will be obtained like this is from MSB and this is for the LSB, and the conversion will be done with the help of the DAC or D2A converter. The one input of the comparator is the analog input voltage, that is the unknown input that we want to convert, and the another input is the known voltage, that is the PD or the output from the DAC. So depending upon which input is high, the output of comparator goes high or low. SOC is the start of conversion and EOC is the end of conversion. So whenever conversion has to start, the clock pulse will be given to the SAR and the conversion will start. And whenever the conversion has to stop, EOC will be given by the SAR and the clock will be stopped. So the basic function of the successive approximation type ADC is depending upon the working of comparator, SAR and DAC. So these are the main building blocks of this type of ADC. It consists of SAR, DAC and comparator. Instead of counting up in binary sequence, this register counts by trying all values of bits starting with the MSB and finishing at the LSB. यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेशन होगा SAR से, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? इट विल स्टार्ट विद द MSB बिट और कहाँ तक रहेगा ये? अप टू द LSB. The register monitors the comparator's output to see if the binary count is greater or less than the analog signal input and adjusts the bits accordingly. जो कंपैरेटर सर्किट रहेगा उसका काम क्या रहेगा? कंपेयर करने का, और रजिस्टर क्या करेगा? उसको मॉनिटर करेगा कि कंपैरेटर का आउटपुट हाई आ रहा है कि लो आ रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू द आउटपुट ऑफ द कंपैरेटर जो भी काउंटिंग होगी वो आगे प्रोसीड होगी. द आउटपुट ऑफ SAR इज गिवन टू n-bit DAC or D2A converter. The equivalent analog output voltage of DAC, that is VD, is applied to the non-inverting input of the comparator. जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, एक इनपुट VA है और दूसरा इनपुट क्या है? VD है. दोनों के स्टेप के इनपुट है एनालॉग, क्योंकि हमें अगर कंपैरिजन करना है द बोथ क्वांटिटीज शुड बी सेम इन नेचर. तो अगर हम एनालॉग इनपुट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कंपैरेटर में दूसरा इनपुट भी कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी एनालॉग इन नेचर. तो DAC से हमें कैसा आउटपुट मिलेगा? एनालॉग आउटपुट मिलेगा. अब कंपैरेटर किसको कंपेयर करेगा? VA और VD को. सो
द इक्विवेलेंट एनालॉग आउटपुट वोल्टेज ऑफ DAC दैट इज VD, इसको हमने क्या लिखा है VD, it is applied to the non-inverting input of the comparator. The second input to the comparator is the unknown analog input voltage VA. The output of the comparator is used to activate the successive approximation logic of SAR. तो जो भी आउटपुट आएगा कंपैरेटर से हाई या लो, उसके अकॉर्डिंगली ही SAR का वर्किंग रहेगा. When the start command is applied, start means SOC, start of conversion. The SAR sets the MSB to logic 1 and other bits are made logic 0, so that the trial code becomes 1000. अगर हम 4 बिट की बात करें तो जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन कमांड आएगी तो इनिशियली SAR क्या करेगा, MSB को 1 कर देगा और बाकी सबको 000 कर देगा. यानी कि जो इसके स्टार्टिंग कोड होगा वो कहाँ से होगा, दिस विल बी स्टार्ट विद द MSB as 1. So it is the trial code or the starting code. तो यहाँ पर हम इस को पूरे वर्किंग को एक कंसेप्ट से हम क्लियर करेंगे एक एग्जांपल लेके. यहाँ पर जो भी होगा वर्किंग उसमें 2 स्टेप्स फॉलो होंगे. दिस टाइप ऑफ ADC ऑपरेट्स बाय सक्सेसिवली डिवाइडिंग द वोल्टेज रेंज बाय हाफ एज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग स्टेप्स. सबसे पहले क्या होगा, the MSB is initially set to 1 with the remaining 3 bits set as 000. जैसा कि अब हमने डिस्कस किया था, जब भी स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन होगा स्टार्ट तो क्या होगा, सबसे पहले वो किसको 1 करेगा, MSB को 1 करेगा. सो द MSB सेट एज 1 एंड ऑल अदर बिट्स आर सेट एज 0. तो अगर हम 4 बिट कन्वर्जन कर रहे हैं तो फर्स्ट बिट 1 हो जाएगी और बाकी सारे बिट्स 000 हो जाएगी. The digital equivalent voltage is compared with the unknown analog input voltage. जैसे ही यहाँ पे सेट हुआ उसके उसी समय उसी मोमेंट पर जो भी वोल्टेज मिलेगा SAR से, उस समय जो वोल्टेज कंपेयर होगा DAC का आउटपुट जो रहेगा और कंपैरेटर का दूसरा इनपुट क्या रहेगा, अननोन एनालॉग इनपुट वोल्टेज. तो दोनों को कंपेयर किया जाएगा यहाँ पर. इफ द एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज हायर देन द digital equivalent voltage that is a VD, the MSB is retained as 1 and the second MSB is set to 1. अगर VA की वैल्यू VD से ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो VD की वैल्यू कम है हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा इसके इक्विवेलेंट लाने के लिए. तो उस केस में जो MSB को हमने 1 रखा है वो तो 1 रहेगा और उसके अगला वाला जो MSB होगा, यानी कि अगर हमें ले ले 1000 तो ये तो 1 रहेगा और अगली जो बिट है वो भी 1 हो जाएगी. आफ्टर द MSB the second MSB will also become 1. और अगर ऐसा नहीं है, इफ़ VA is less than VD, अगर VA की वैल्यू VD से कम आ रही है, यानी कि कंपैरेटर में जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है कि VA is less than VD, तो उस केस में VD को हमें कम करना पड़ेगा टू मेक इट कंपेरेबल विद द एनालॉग इनपुट वोल्टेज. तो उस केस में जिस MSB को हमने 1 किया है, लाइक स्टार्टिंग में हमने किसको 1 किया हुआ है, फर्स्ट बिट को, दैट इज़ द MSB बिट, तो इसको हम 0 कर देंगे और उसके अगले वाले MSB बिट को 1 कर देंगे. यानी कि जो पहले से 1 था उसको 0 कर दिया और उसके नेक्स्ट बिट को हमने 1 कर दिया. तो ये प्रोसेस होगा यहाँ पर. तो यहाँ पर कंपैरिजन होगा, हर बार हर स्टेप में कंपैरिजन होगा कि यहाँ पर हमें जो MSB को 1 रखा है उसको 1 रखना है और नेक्स्ट को 1 करना है, या फिर जिसको हमने 1 किया था उसको 0 करना है और उसके बाद नेक्स्ट वाले को 1 करना है. तो अकॉर्डिंग टू दिस 2 कंडीशन ये 1 by 1 कन्वर्जन प्रोसेस होगा. तो यहाँ पर हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी स्टेप फॉलो करना है. ये VA है और ये VD है. जब जब माइनस इनपुट हाई होगा तो उस समय आउटपुट क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव मिलेगा, यानी कि लो मिलेगा. यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, VA इज ग्रेटर देन VD. तो उस केस में हमें MSB को 1 रखना है और उसकी अगली बिट को भी 1 करना है. सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, व्हेन VA इज लेस देन VD. तो ये कंडीशन हमें कैसे समझ में आएगी, जब प्लस वाला इनपुट हाई होगा माइनस वाले से. तो यहाँ पर हमें कैसा आउटपुट मिलेगा, कंपैरेटर से हाई मिलेगा. तो अगर ये कंडीशन आ रही है तो वहाँ पर VD की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, VA की वैल्यू कम है, तो VD को हमें लोअर डाउन करना पड़ेगा.
तो जो ऑलरेडी 1 था उसको हमने 0 कर दिया और उसकी अगली बिट को 1 कर दिया। तो ये दो मेथड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द आउटपुट ऑफ कंपैरेटर। तो इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज a 4-bit ADC is used and the analog input voltage is 11 वोल्ट। यानी कि हमको अभी तो हमने इस क्वेश्चन में 11 वोल्ट ले लिया है, लेकिन हमें वहाँ पर ये वैल्यू मालूम नहीं रहेगी। दिस इज अननोन वोल्टेज। सो अननोन इनपुट वोल्टेज हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल वैल्यू। तो यहाँ पर हम इस मेथड की एक्यूरेसी को समझने के लिए हमने पहले से इसकी वैल्यू को डिफाइन कर दिया है। सो वी आर टेकिंग VA इज 11 वोल्ट। अब हमें देख रहे हैं कि इस मेथड से हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो व्हेन द कन्वर्जन स्टार्ट्स द MSB इज सेट टू 1। MSB सेट टू 1 यानी कि इनिशियली क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले किसको 1 करेंगे हम, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और द MSB। अब इसके बाद कंपेयर करेगा। जैसे ये हुआ, ये कहाँ से मिलेगा हमें, ये वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, ये वैल्यू स्टोर होगी यहाँ पर। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। और VA की वैल्यू क्या है, 11 वोल्ट। अब इसको और ये जो इसको एनालॉग में कन्वर्ट करके यहाँ भेजा है, इन दोनों को ये कंपेयर करेगा। इस केस में इसकी किसका बाइनरी इक्विवेलेंट है, 8 का। एंड व्हाट इज द एनालॉग इनपुट वोल्टेज, 11। सो इन दिस केस VA इज ग्रेटर देन VD। यानी कि यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिल रहा है कंपैरेटर का वो कैसा मिलेगा, लो मिलेगा। तो यहाँ पर VA की वैल्यू ज़्यादा रहेगी और VD की वैल्यू कम रहेगी। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में VA इज़ ग्रेटर देन VD, तो वो जो बिट पहले से 1 है वो तो 1 रहेगी और उसके आगे वाली बिट को भी हम 1 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 0। अब एक इसका बाइनरी हो गया, दिस द बाइनरी ऑफ 12। अब इस 12 वोल्ट को ये फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और 11 के साथ कंपेयर करेगा। अब ये 11 हो गया और ये 12 हो गया। इन दिस केस VA इज लेस देन VD। अब जैसे VA लेस देन VD होगा तो कौन सी प्रोसेस होगा, उस केस में जो पहले से 1 था उसको हमें 0 करना रहेगा और नेक्स्ट वाले बिट को 1 करना रहेगा। तो अभी हमने किसको 1 किया था, सेकेंड बिट को। तो उसी बिट को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे और उसकी अगली वाली बिट को 1 कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 1 0 1 0। सो 1 0 1 0 किसका इक्विवेलेंट हो गया बाइनरी, इट इज 10। सो अगेन दिस 10 विल बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग वोल्टेज, इट इज अ VD एंड द 11 वोल्ट विल बी कंपेयर्ड विद दिस। तो अब हमें क्या मिला, अब हमें यहाँ से मिला है 1 0 1 और 0, यानी कि बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 10 एंड दिस इज द 11। तो जब इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो अगेन व्हाट विल बी हैपन, VA इज ग्रेटर देन VD। फिर से VA इज ग्रेटर देन VD होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस बिट को हमने 1 किया है उसको तो 1 रखना ही है और उसके अगले वाली बिट को भी 1 करना है। तो ये हो जाएगा, जिसको 1 किया वो तो 1 रहेगा और उसके अगले वाली बिट क्या हो जाएगी, 1। नाउ इट बिकम्स द बाइनरी ऑफ 11। तो अब यहाँ पर आके दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। सो एट दिस टाइम इट इज़ एंड ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पे कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा, क्लॉक स्टॉप हो जाएगी और इस समय जो यहाँ पर SAR में जो वैल्यू स्टोर होगी दैट इज़ द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ unknown analog voltage. So this is the method to convert the analog value into digital using the successive approximation type ADC. Basically successive approximation register is nothing but it is a serial shift register जो कि values को serially shift करेगा और उसको store करके रखेगा और it will be appeared at the output side. इस एग्जाम्पल से हमने क्लियर कर लिया, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी एग्जाम्पल को इनिशियली 8 वोल्ट आया था, 8 वोल्ट को कंपेयर किया तो उसके बाद हमने अगली बिट को हाई किया। अगली बिट को हाई करने के बाद क्या मिला, हमें 12 वोल्ट मिला। फिर 12 वोल्ट को कंपेयर करेगा, 12 वोल्ट कंपेयर करने से क्या मिलेगा, नाउ VA इज लेस देन VD। तो जिसको हमने 1 किया था उसको 0 कर देंगे। तो यहाँ पर जिसको 1 किया था उसको 0 कर दिया और उसके अगली वाली बिट को 1 कर दिया। अब क्या मिला, हमें 10 मिला। नाउ VA इज ग्रेटर देन VD। तो अब फिर से VA की वैल्यू VD से बढ़ गई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो 1 था वो तो 1 रहेगा ही, उसके अगले वाले को भी 1 कर दिया। तो फाइनली हमें क्या मिला, वी विल गेट द 11 वोल्ट एज द डिजिटल आउटपुट। तो इस तरीके से किसी भी अननोन इनपुट को, एनालॉग इनपुट को हम
डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी मेथड को हम इस पर्टिकुलर चार्ट से भी क्लियर कर सकते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है एग्जाम्पल। ये किसी भी वोल्टेज के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर हम 4 बिट कन्वर्जन के लिए काम कर रहे हैं तो ये 4 बिट अगर हमने एडीसी बनाया है तो किस तरीके से प्रोसेस होगा ये हमको यहाँ पर देखना है। इनिशियली काउंटर की वैल्यू क्या रहेगी 0 0 0 0। जैसे ही स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन होगा तो किसको 1 कर देगा ये MSB को। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दैट इज दिस बिकम्स 1। इनिशियली क्या 1 हो जाएगा MSB। अब इसके बाद ये जो वैल्यू है ये कहाँ मिलेगी हमें SAR में, और ये वैल्यू कहाँ जाएगी DAC में। DAC इसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा और इसको एनालॉग इनपुट VA के साथ कंपेयर करेगा। अगर इसकी वैल्यू अभी ये वाली कंडीशन क्या है व्हेन VA इज लेस देन VD। अगर VA की वैल्यू VD से कम है, यानी कि जो यहाँ से कन्वर्जन हो रहा है वो वैल्यू एक्चुअल एनालॉग इनपुट से कम है, तो क्या स्टेप परफॉर्म होगा यहाँ पर, जिसको 1 किया था वो 0 हो जाएगा और उसके अगले वाली बिट 1 हो जाएगी। तो ये क्या मिलेगा हम अपने को 0 1 0 0 0। अब फिर से इसी वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। यहाँ पर भी 2 कंडीशन बनेगी, इफ़ VA इज़ ग्रेटर देन VD और इफ़ VA इज़ लेस देन VD। तो अगर ग्रेटर देन VD है तो हमें हायर साइड जाना पड़ेगा VD को बढ़ाने के लिए। तो जो बिट 1 थी वो तो 1 रहेगी, उसकी अगली वाली बिट भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मिला अपने को 0 1 1 0। बट इफ़ VA इज़ लेस देन VD तो क्या करेंगे हम, जो बिट 1 थे उसको 0 कर देंगे और उसके अगले वाली बिट को 1 कर देंगे। तो क्या मिलेगा 0 0 1 0। सिमिलरली अगर हम हायर साइड जा रहे हैं यानी कि VA इज़ ग्रेटर देन VD तो हमें क्या करना पड़ेगा, VD को बढ़ाना पड़ेगा। तो जो पहले से 1 था वो तो 1 रहेगा ही, उसके अगली वाली बिट भी 1 हो जाएगी। अब इसको कंपेयर करेंगे तो अगेन ग्रेटर देन और लेस देन 2 कंडीशंस मिलेंगी। ग्रेटर देन वैल्यू है यानी कि जो हमें कन्वर्जन हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू एनालॉग इनपुट से कम आ रही है, तो जो बिट 1 थी वो तो 1 रहेगी, उसकी अगली वाली बिट भी 1 हो जाएगी। और अगर लेस पे जा रहा है यानी कन्वर्जन जो वैल्यू मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है, तो जो प्रीवियसली 1 थी वो 0 हो जाएगा और उसके अगली बार वाला 1 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि कम्प्लीटली कन्वर्जन नहीं हो जाता, यानी कि जब तक कि सारी बिट कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर हम किसी भी वोल्टेज को इस प्रोसेस से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके आगे इसको कंपेयर करेंगे, इसको जो भी वोल्टेज हम कंपेयर कर रहे हैं, सपोज हमें किसका चाहिए, हमने लिया है यहाँ पर 15 वोल्ट इनपुट में, तो 15 वोल्ट को हमें कन्वर्ट करना है डिजिटल में। तो 15 वोल्ट के लिए क्या रहेगा, पहले 12 लेगा वो, सबसे पहले तो 8 आएगा, फिर 12 आया। अब 12 की वैल्यू भी इससे कम है तो कहाँ जाएंगे हम, हायर साइड जाएंगे, तो फिर 1 1 1 0 हो गया। फिर कंपेयर होगा, अगेन इट इज़ लेस देन द 15, तो अब जो 1 है वो तो 1 रहेगा ही, उसकी अगली वाली बिट भी 1 हो जाएगी। अब इसके बाद ये जो है इट इज़ द फाइनल कन्वर्जन। तो अगर हमें 15 वोल्ट को कन्वर्ट करना है तो कहाँ तक जाएंगे हम, यहाँ से यहाँ, यहाँ फिर यहाँ, सो इट इज़ द फाइनल कन्वर्जन। सिमिलरली अगर हमें सपोज वी वांट टू कन्वर्ट 9 वोल्ट इनटू डिजिटल, तो क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग 1 0 0 0 से होगी, अगेन इट विल बी कंपेयर्ड। अगर इसकी वैल्यू VA से ज़्यादा है तो हम इस साइड जाएंगे, लोअर साइड जाएंगे, अगर इसकी वैल्यू VA से कम है तो हायर साइड जाएंगे। सो हियर VA इज़ 9 वोल्ट एंड दिस इज़ द 8 वोल्ट, तो हमें हायर साइड जाना पड़ेगा। तो जो बिट 1 थी वो तो 1 रहेगा ही और उसके अगली वाली बिट भी 1 हो जाएगी। नाउ इट बिकम्स 12 बट इट इज़ ग्रेटर देन VA। तो VA की वैल्यू 9 वोल्ट है और हमें VD क्या मिल रहा है 12 वोल्ट, तो हमें लोअर साइड जाना पड़ेगा। तो हम किस साइड जाएंगे, लोअर साइड। सो लोअर साइड में जो बिट 1 की थी उसको 0 कर देंगे और उसकी अगली वाली बिट को 1 कर देंगे। नाउ इट बिकम्स 10, अगेन इट इज़ ग्रेटर देन द VA। सो अगेन कंपैरेटर का आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, हाई मिलेगा। फिर से अब हम किस साइड जाएंगे, वी विल हैव टू गो टुवर्ड्स द लोअर साइड। तो जिस बिट को हमने 1 किया था उसको 0 कर देंगे और उसके अगली वाली बिट को 1 कर देंगे। तो यहाँ पे आके कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, इट विल बी द 9 वोल्ट। तो यहाँ पर आके कंपैरेटर के दोनों इनपुट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे यहाँ पर आके। तो ये प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होगा या हमें इक्विवेलेंट वोल्टेज डिजिटल फॉर्म में नहीं मिल जाएगा।
तो लास्ट में आके जो कंडीशंस होंगे वो क्या होगी, ग्रेटर देन में, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं सारे 1 हो चुके हैं तो इसके आगे कोई 1 नहीं होगा, सो इट इज़ द लास्ट कॉम्बिनेशन, इसके आगे कॉम्बिनेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर लेसर से जाना है तो हम जो ऑलरेडी 1 था उसको 1 कर देंगे और अगले वाले बिट को 0 कर देंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशंस होगी क्योंकि इसके आगे पॉसिबल नहीं है। सो यू कैन चेक फ्रॉम दिस फ्लो चार्ट, दिस इज अ 0, दिस इज 1, 2, 3 एंड दिस इज अप टू 15। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर 4 बिट से 0 से लेके 15 वोल्ट तक के वोल्टेजेस को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ द कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप A to D कन्वर्टर, जहाँ पे हम MSB बिट को सबसे पहले 1 करेंगे और उस वोल्टेज को कंपेयर करेंगे अननोन एनालॉग इनपुट वोल्टेज के साथ। अगर वो वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो वैल्यू को कम करने के लिए हम जिसको हमने 1 किया था उसको 0 करेंगे और अगली वाली बिट को 1 कर देंगे। अगर वैल्यू कम आ रही है तो हम उसको अगली वाली बिट को भी 1 कर देंगे। तो इस तरीके से बिट बाय वन हम उस बिट्स को 1 और 0 करते जाएंगे। सो इट इज़ द मेथड टू कन्वर्ट द वोल्टेज इनटू डिजिटल। तो यहाँ पर हमने इस एग्जाम्पल से भी यही डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने V11 वोल्ट लिया था और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमने उसको उसके इक्विवेलेंट डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट किया था। तो हमें यहाँ पर ये देखना रहेगा हर स्टेप में कि जो भी DAC का आउटपुट है, यानी कि जो भी हमें यहाँ पे बिट मिल रही है वो VA से कम है कि ज़्यादा है। अगर कम है तो हायर साइड जाएंगे और अगर ज़्यादा है तो लोअर साइड जाएंगे। सो इट इज़ द मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप ADC। नाउ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ ADC. Advantages are, first is speed is high as compared to counter type ADC. Good ratio of speed to power. Next is compact design compared to flash type and it is inexpensive. The disadvantages are cost is high because of use of SAR, successive approximation register. And the second disadvantage is complexity in design. The application of this ADC is used and the techniques where the sampling rates is higher than the 10 kilohertz. So these are the advantages, disadvantages and application of successive approximation type ADC. So it's all about the successive approximation type ADC. We have discussed the basic concept, working and block diagram of successive approximation type ADC. Thank you.